Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing extremely well. So in this video, we are going to cover another interview experience. Well, this is about how to switch from service-based company to product-based company. So with reference to that, I have invited Atul on my YouTube channel. So he has recently joined InfoEdge. Before that, he was working in Wipro. So in this video, he'll be sharing all his journey, that how he did the preparation, what are the resources he followed, and many more useful stuff. So make sure to watch the complete video. But before proceeding further, if you are new to this channel or if you haven't subscribed my channel till now, then please guys do subscribe. So with that note, let's get started. So Atul, you can start with your introduction. Yeah. Okay. First of all, I want to thank Soumya for inviting me and for giving me opportunity to share my experience. And let me introduce myself first. My name is Atul Patel. I'm 2020 batch pass out from Jabalpur Engineering College, and I have 1.5 year experience in working as a software developer in service-based company. Okay, and recently I have switched to product-based company InfoEdge. Okay, great. Congratulations, Atul. And also, thanks a lot for Thank you. accepting my invitation. I believe that your journey will be very helpful for all of the viewers. So, Atul, I have one question that, like, how you got this opportunity? First of all, did you got this opportunity through referral or you applied on the career portal itself? Okay, so I have tried many ways to apply in different companies like Career Portal, LinkedIn, and Nokia.com, and there was so many websites also like Cutsort, InstaHire, and many ways I tried to apply. Okay, so for the Nokia.com, you can say InfoEdge, I got the opportunity from Nokia.com. Okay, means that Naukri applications, and I got the email from the Naukri, and they have given me some kind of a link that this is an assessment link, and if you want to go ahead, so first you have to give a assessment. Okay, so you can say from the Naukri.com I got the opportunity. Okay, great. So, guys, you can see that these would be the helpful platform for you that Atul has just specified. So, Atul, when you started preparing for the product-based companies, right after joining the Wipro, or like before that you were preparing? So at the college time, I was not aware. I was not much interested in coding part, and I was so much inclined toward the government job preparation. So at the first and second year, I prepared for the government job, and like for example, you know the condition of a government job, so that there is a lack of opportunity. So at the last, you can say final year, so because at that time there was no any kind of opportunity in a government, so I wanted some kind of a job. Okay, because that from the my background, like for example, I'm coming from the lower middle class, so it is important that you should have some kind of a job. Right. So yeah, so one point is that so that at that time I prepared for the, you can say, for the placement. Okay, and I prepared for the aptitudes, English and reasoning, all the things, and little bit coding. Okay, not much. Okay, just arrays, string, stack and queue, only this thing. And I have paired to many companies like in my college only service based company is coming, like TCS, Infosys, Wipro, and you about what I don't know about the names. So many companies. Okay, like around 10 companies is come that time came. Okay, and you can say I rejected around nine company. Okay, and the Wipro was the last company that I appeared, and I cleared that company. Okay, and Wipro is giving me a chance to be enter in a IT world. Well, when I was listening to you, so I can say that your story is also like similar to that of mine only. So, like, if I would say, so for the first 2 years, like, even I was also inclined toward government job only. I was doing the preparation, but later on, I realized that okay, it's a very difficult thing, right? So many tough challenges are there. Obviously, competition is like what to mention. Everybody Yeah. knows that. Yeah. So okay, so that was great to hear. So from Wipro you started your IT career, then फिर उसके बाद आपने preparation start किया, right? फिर आपको awareness बढ़ा होगा and then you started the preparation. तो ये फिर coding वगैरह आपने फिर कब से start किया, DSA वगैरह?
हाँ, ओके। जब मैंने विप्रो ज्वाइन किया तो उस समय बस मेरे को लगा कि यार अपने को कंपनी एक अपॉर्चुनिटी मिली है और बस अपने को इस पे काम करना है। ओके, तो एट दैट टाइम माय कजिन वर्क इन माय यू कैन से इन माय रूम, यू कैन से हाउस, and he is preparing for the product based company. Okay, and we discussed a lot for the many product based company like Amazon, Google, Microsoft, and all the companies. And it means that it was a not dream of mine that I can crack the company, this kind of a company. Okay, but मेरे कजिन हमेशा बात करता था कि अपने को बहुत मतलब ये कंपनी में जाना है और अपने को फोड़ना है। तो मैं मतलब ऐसे डिस्कस करते करते मैं उनसे पूछा कि भाई यार कैसा क्या है, क्या मतलब क्या करना क्या होता है इसके लिए। तो उन्होंने बोला अपना डीएसए डीएसए चालू करना होता है और डीएसए ही है जो अपने को इन कंपनी में अंदर जा सकते हैं अपन, और बिना डीएसए के नहीं जा सकते। तो उस समय मेरे को ये समझ में आ गया कि अपने को डीएसए करना ही पड़ेगा यदि ये सब कंपनियों को अपने को मतलब इंटरव्यू देना है। तो फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया कि चलो ठीक है, अब धीमे धीमे से डीएसए चालू करता हूँ मैं। तो इस तरीके से मेरी डीएसए की जर्नी चालू हुई थी, मतलब इंस्पिरेशन फ्रॉम द कजिन ब्रदर। अंडरस्टूड, ग्रेट। सो आपने स्टार्ट कर दिया, फिर आपने लाइक रिसोर्सेज क्या फॉलो किए? ऑब्वियसली लाइक आपने कोई स्पेसिफिक, अगर आप मीन्स प्लेटफॉर्म बताना चाहते हो, लाइक क्योंकि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म में कोडिंग के, राइट? तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप सब पे जाते होगे, तो कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म जो आपने फॉलो किया हो, जो भी रिसोर्सेज फॉलो किए हो प्रिपरेशन के लिए? ओके, तो एट द स्टार्टिंग में सभी जगह जा रहा था, जैसे कि गिग्स फॉर गिग्स में हो गया, यूट्यूब से पढ़ना हो गया, लेट कोड हो गया, हर जगह से पढ़ना हो गया। लेकिन मैं लगभग 3 से 4 महीने कंप्लीट होने के बाद मुझे समझ में आ गया कि यार मैं कुछ कर नहीं पाया, अभी 3-4 महीने में इतना ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ पाया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे मैं डीएसए कर पाऊँ, मेरे पास एट दी एंड 2-3 प्रोजेक्ट हो और एक डिसिप्लिन वे में कर पाऊँ। तो फिर मैं उस समय मतलब यूट्यूब पे बहुत ज्यादा यू कैन से एडवर्टाइज होता था Cryo.do का। ओके, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब भी एंड कंप्लीट होता है, मैं उस समय लगभग जैसे आपको पता है कि मैं उस समय सर्विस बेस्ड कंपनी में था और वो लोग बोलते थे कि आपको फेलोशिप प्रोग्राम में आपको मतलब 12 महीने का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास जॉब गारंटी भी होगा, आपको लगभग 6.5 LPA का पैकेज लग जाएगा आपका। तो मेरे को लगा कि यार 1 साल के बाद यदि मैं मेहनत कर लेता हूँ इनके जैसे जैसे ये बताते हैं तो 100% अपनी गारंटी पक्की है 6.5 की, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो फिर मैंने उसके हिसाब से मैंने क्रायो ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वहां पे मुझे मिल रहा था कि एक स्ट्रक्चर वे में डीएसए। ओके, और फिर इसके बाद मुझे 2-3 प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे और पूरा मतलब गाइडेंस भी मिल रहा था, यू कैन से। तो फिर मैंने क्रायो ज्वाइन करके फिर वहां से स्टार्ट किया था मैंने अपनी जर्नी को। ओके, तो क्रायो का ये जो फेलोशिप प्रोग्राम मेंशन करे हो, तो ये पेड था कि लाइक कुछ अनपेड? अनपेड। नहीं, ये पेड था, इसके लिए मैंने 60,000 दिए थे। ओके। मतलब कि ऐसा मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट में वो 5,000 पर मंथ पड़ गया था, मतलब 12 महीने में। ओके, ओके, तो तो मतलब ये था। काफी फ्रूटफुल हाँ, रहा आपके लिए। हाँ, मतलब ये एट द स्टैंड माइंड में ये चल गया था कि यदि मैं इसको फॉलो कर लूंगा ना, एट द एंड मतलब 12 महीने बाद, 1 साल के बाद मेरे पास 6.5 LPA की जॉब रहेगी। तो वो मैं माइंड में चल गया, मतलब घुस गया था कि अपने को ये बस इसको फॉलो करना है और कहीं पे नहीं जाना है। और लेकिन मैं यूट्यूब पे एक चैनल है पेप कोडिंग नाम से, तो वहां से मैंने डीएसए पढ़ना असली में चालू किया था, मतलब समझना चालू किया था कि अच्छा लगने लग गया था कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ। और कॉलेज के समय मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि यार मेरी इतनी सारी चीजें, ये सब चीजें मेरे से बनेगी कि नहीं होगी, मेरे लिए कोडिंग है कि नहीं। लेकिन मैंने वहां से प्रेप कोडिंग से चालू करके धीमे धीमे करके अपना नॉलेज लेना चालू किया कोडिंग के रिलेटेड। ओके, ओके, ग्रेट। या ऑब्वियसली पैप कोडिंग इज लाइक काफ़ी अमेजिंग चैनल है एंड काफ़ी सारा रिसोर्सेज उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। ओके, तो दिस वाज अबाउट कि आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए, कैसे आपने जर्नी स्टार्ट करी। देन आ जाते हैं कि आपका जो इन्फो एज का, जैसे कि आपने मेंशन किया पहले असेसमेंट आया, तो इसमें आपके क्या राउंड्स थे एंड उन राउंड्स में क्या कैसी डिफिकल्टी लेवल कैसा था? मतलब आपके अकॉर्डिंग डीएसए के क्वेश्चंस थे अगर, तो वो किस डिफिकल्टी लेवल के थे? तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ओके, मैं इससे पहले थोड़ा सा एक और चीज मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा कि यार मैंने इस लगभग जब मैं नोटिस पीरियड चालू करा था 3 महीने मेरे पास थे। ओके, तो 3 महीने बहुत ज्यादा समय होता है, तो फिर मैंने सोचा कि कैसे कैसे इसको बड़े एक्सटेंड में किया जाए। तो फिर मैंने लिंक्डइन से अप्लाई करना चालू किया। ओके, फिर जैसे मैंने बताया अपना Naukri.com में अप्लाई करना चालू किया और एक एक दो वेबसाइट से कटसोर्ट और इंस्टा हायर ये थी।
तो इनसे मैं इनमें बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि Naukri.com में आपके 100% प्रोफाइल होनी चाहिए और आप उसको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉल्स आते हैं। तो लगभग इसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे Naukri.com से कॉल आए और लगभग मैंने 10 कंपनी मैंने क्रैक की थी, मतलब जिसमें से 3 से 4 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी और 3 से 4 सर्विस बेस्ड कंपनी थी और 1 से 2 स्टार्टअप कंपनियां थी। और ये मतलब इतनी सारी कंपनी मैंने 3 महीने के अंदर मैंने क्रैक की थी कि मुझे ऐसा लगा था कि एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, किसी लिंक्डइन पोस्ट में पढ़ा था कि जितना ज्यादा तुम इंटरव्यू दोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारे चांसेस बढ़ेंगे कि कुछ तुम ज्यादा अच्छा हासिल कर पाओ। तो वो मैं माइंड में ठोट आ गया था। तो जितना ज्यादा अप्लाई कर रहा था, और मैं तुम्हें बता दूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ओरेकल भी निकाल रखा है, मतलब ओरेकल, टेक्मोजो, इन्फो एज और बहुत सारी कंपनियां ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट एज वेल। तो ओके, आई वॉज हैविंग वन क्वेश्चन। तो आपने जैसे कि रिज़ाइन किया था, राइट, क्योंकि 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, तो उस टाइम कोई ऑफर था आपके पास कि आपने बिना ऑफर के रिज़ाइन किया था? मीन्स एक ऑफर नहीं, पे। उस समय मेरे पास एक ऑफर था, 7 LPA का था। तो ओके। उसके हिसाब से मैंने रिजाइन कर दिया था कि मेरे पास एक ऑफर लेटर है, चल वर्स्ट केस कंडीशन में क्या होगा, कुछ नहीं मिला तो मेरे पास, मेरे घर के पास ही है, 7 LPA का मोर देन इनफ है। मैं घर में मतलब कि सब यू कैन सेटिस्फाइड था मैं उससे लिए। फिर उसके बाद मैंने देना चालू किया। मैं बीच में रुक गया था, मतलब जैसे मेरे पास 7 LPA का ऑफर लेटर आया एक ही बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो मैं खुश हो गया था यार, अपने को इससे ज्यादा नहीं चाहिए। फिर मैं लोगों के साथ बहुत ज्यादा कांटेक्ट में था, दोस्तों के साथ। तो उन्होंने बोला कि यार अपने को यहाँ पे नहीं रुकना, अपने को 7 LPA पे थोड़ी ना रुकना, अपने को बहुत कुछ बड़ा हासिल करना है। तो वो लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है कि यहाँ पे मत रुक, और जितना ज्यादा तू इंटरव्यू दे सकता है उतना ज्यादा इंटरव्यू दे। तो उसके बेसिस पे मैं जितना ज्यादा इंटरव्यू हो सका मुझसे, जो बड़ी बड़ी कंपनी, मेरे को बहुत डर लगता था कि यार वैसे कंपनी निकलेगी कि नहीं, और विकल निकलेगी कि नहीं, इन्फोज निकलेगी कि नहीं, लेकिन वो बोलते थे कॉन्फिडेंस में बस देते जा, अब मत सोच कि रिजल्ट के बारे में, ये रिजल्ट क्या होगा। तो फिर मैं देता गया और भगवान की वजह से सब निकल गया हाँ, भगवान और की मेरी वजह से मेहनत की वजह से डेफिनेटली, हाँ, आपकी एफर्ट्स भी थे फॉर श्योर। ओके, तो ठीक है। एंड तो आपने इतने सारे ऑफर्स, ओके, मुझे पहले पता नहीं था, थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट। तो एक जनरल क्वेश्चन जो है कि आपने इतनी सारी कंपनी लाइक ओरेकल मेंशन की और आपने और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मेंशन करी, तो डिफ़िकल्टी लेवल जैसे कि कभी कभी मीन्स ऐसा थोड़ा सा शो होता है ना कि बहुत ही कठिन रहता है, तो आपने तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया, तो आपको क्या लगता है लाइक डिफ़िकल्टी लेवल एक्चुअल में कैसा होता है? मैं तो मानता हूँ डिफिकल्ट तो होता है, मतलब बेसिकली सबसे पहला पॉइंट ये आता है, डीएसए आपका राउंड होगा, सबसे पहले रिटर्न राउंड डीएसए पे होगा, फिर इसके बाद आपका कोडिंग राउंड डीएसए पे होगा, फिर उसके बाद यदि आप थोड़ा सीनियर के लिए जावे तो सिस्टम डिजाइन आपको आ जाएगा। तो मतलब ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति 6 महीने एफर्ट देता है, अच्छे से काम करता है, मतलब ये स्किल्स एक्वायर करने में, तो उसके लिए धीमे धीमे करके आसान होगा। लेकिन ऐसा इजी नहीं बोल सकते कि सब कंपनियों को क्रैक करना इजी है। वो 1 साल की मेहनत, 1 डेढ़ साल की मेहनत है। जब मैंने विप्रो ज्वाइन किया था, वहीं से मैंने प्रिपरेशन करना चालू कर दिया था, पढ़ना चालू कर दिया था। तो वो 1 डेढ़ साल की मेहनत मुझे लगी, और मतलब मुझे लगा कि थोड़ा बहुत ज्यादा मैंने टाइम वेस्ट भी कर दिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति 6 महीने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़े तो मेरे को लगता है कि क्रैक कर सकते हैं। ओके, ग्रेट अतुल। तो अब आप प्लीज हमें बताइए कि इन्फो एज में आपके क्या राउंड्स रहे थे एंड क्या डिफिकल्टी लेवल था उसका? ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि एक ईमेल आ गया था, ईमेल में मुझे असेसमेंट लिंक था। तो असिस्मेंट पहला राउंड तो अपना कोडिंग राउंड टाइप का हो गया, जिसमें हमारे पास कुछ एमसीक्यू प्लस 2 कोडिंग क्वेश्चंस। तो एमसीक्यूज में मैं जैसे कि एज अ मैं बैकएंड डेवलपर जा रहा था, तो मुझे जावा, स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विसेज और स्प्रिंग सिक्योरिटी, इसके एमसीक्यूज पूछे गए, और 2 कोडिंग क्वेश्चन में एक एवे का क्वेश्चन था और एक ग्राफ का क्वेश्चन था। तो उनमें से मैंने एक एवे वाला क्वेश्चन मतलब सभी टेस्ट केस पास कर दिए थे, और ग्राफ वाले थोड़ा सा 1-2 टेस्ट केस पास कर पाया था। ओके। तो ये पहला राउंड ये था। और सेकंड राउंड अपना कोडिंग राउंड था। कोडिंग राउंड में बेसिकली 2 कोडिंग क्वेश्चन थे, जिसमें से एक एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं, मतलब ये पहला क्वेश्चन तो स्लाइडिंग विंडो का था, एंड सेकंड स्टैक के रिलेटेड था। ओके, और फिर उसके बाद उसी के अंदर उन्होंने डीबीएमएस पूछा था और पजल्स पूछे थे, मतलब एसक्यूएल और पजल। ये इस तरीके से मैं सेकंड राउंड गया। और फिर थर्ड राउंड में सिस्टम डिजाइन के राउंड था, मतलब लो लेवल डिजाइन और हाई लेवल डिजाइन था। ठीक ओके, है, तो ये फिर इसके बाद अपना
हाँ सिस्टम फिर डिजाइन का इसके जो बाद था आपका, ये लाइक हाँ विद इंटरव्यूअर के साथ था कि किस तरीके से था जो आपका थर्ड राउंड इंटरव्यू था? के साथ, हाँ इंटरव्यू के साथ ही था। मतलब उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी थी, उसके बेसिस पे मुझे एंटिटीज, क्लास और उनके बीच के रिलेशनशिप और मेथड के सिग्नेचर्स, ये सब चीज डिफाइन करनी पड़ी। ओके, फिर इसके बाद मैनेजमेंट राउंड था। तो मैनेजमेंट राउंड मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट राउंड मुझे लगा कि मतलब जो भी इन्फोइज में जिस टीम में मैं गया हूँ वहाँ के मैनेजर बेस्ट है। मतलब वन ऑफ द you can say reason that I selected to Infoedge that management round because that मतलब उन्होंने इतना कंफर्टेबल किया था, मतलब हिंदी में टॉक चल रहा था हमारा डिस्कशन टाइप का। तो मैनेजमेंट राउंड में भी बेसिक में प्रोजेक्ट बारे में पूछा गया और फिर उसके बाद एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया और बेसिक डिस्कशन चला कि मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस और तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या बेकार लगता है, उस टाइप का थोड़ा मतलब नॉर्मल डिस्कशन चल रहा था। मतलब कि वो मेरी पर्सनालिटी को जानना चाह रहे थे कि मतलब बंदा कैसा है, मतलब हमारे इसमें हमारी टीम में ऑनबोर्ड होगा तो भाई किस टाइप का बंदा है। ठीक है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो बात करके। तो मुझे वन ऑफ द फैक्टर जहाँ पे मैं लगभग मेरे पास 10 से ज्यादा ऑफर थे तो मैंने इन्फोएज को चूज किया, वो वन ऑफ द यू कैन से रीजन है। ओके, फिर इसके बाद अपना एचआर राउंड हुआ। इस तरीके से 4 से 5 राउंड हुए। ओके, ओके, परफेक्ट। सो आप जब डिस्कशन कर रहे थे तो आपने मेंशन किया अबाउट सिस्टम डिज़ाइन। तो सिस्टम डिज़ाइन के लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए? लाइक जैसा कि आपने क्रायो के बारे में बताया, तो क्या आपने सिर्फ क्रायो से ही प्रिपरेशन करा था या इसके अलावा भी कोई और रिसोर्सेज फॉलो किए थे? तो क्रायो में बेसिकली एक स्प्रिंट था। एक स्प्रिंट मतलब 1 महीने का सेशन चला था, मतलब लो लेवल डिजाइन के ऊपर। तो उसके बेसिस पे मतलब मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहां से चालू हुई थी, डिजाइन पैटर्न्स और क्लासेस क्या होती है, उनके बीच के रिलेशंस क्या होते हैं और अपन कैसे कोड लिखते हैं। मतलब कैसे अपन किसी भी चीज का डिजाइन पैटर्न का यूज करते हैं या किसी स्टैंडर्ड को कैसे फॉलो करते हैं, वहां से मैं बेसिक आइडिया मिल गया था। और मैंने 1-2 यूट्यूब चैनल से भी आइडिया लिया है, जैसे कि गौरव सेन का यूट्यूब चैनल था। ओके, फिर इसके बाद सौम्यजीत भट्टाचार्य का था और फिर इसके बाद सुडो कोड था। सुडो कोड जो योगिता जी है वो मेरे कॉलेज से ही है, मतलब जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से ही है। तो यहाँ से मैं बेसिकली सिस्टम डिजाइन का मैंने किया है, मतलब यूट्यूब प्लस क्वायो से। सो आई थिंक कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, एंड वट एवर यू एक्सप्लेन लाइक इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ द व्यूअर्स। सो ओके, बिफोर रैपिंग अप द वीडियो, अगर आप कुछ हेल्पफुल एडवाइस देना चाहते हो, लाइक आपने एकदम स्टार्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बिल्कुल स्क्रैच से, तो अगर आप कुछ हेल्पफुल मैसेज देना चाहते हो व्यूअर्स को या जो भी लोग देख रहे हैं आपके जूनियर्स को, सो प्लीज़। ओके, तो बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि अपन किसी भी गोल को 3 से 5 मतलब 4 से 5 स्टेप में जल्दी से पा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप ही बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। तो सबसे पहले भाई कि सबसे पहले अपने को डिसाइड करना होता है अपने को करना क्या है। ओके, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अपने को ऐसे बंदे आसपास रखने हैं, मतलब अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाना है कि जो जिनका अलाइनमेंट गोल तुम्हारा गोल और उनका गोल बिल्कुल सेम हो। पहला सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, तुम्हें ऐसे मेंटर्स मतलब गाइड उनसे उनसे गाइडेंस लेना है जिन्होंने वो कर चुका है जो तुम करना चाहते हो, तो वो तुम्हें आसानी से गाइड करेंगे। और फिर उन सभी मतलब फिर उसके बाद तुम एक सिस्टमेटिक प्लान बना लो कि तुम्हें यहाँ मतलब क्या क्या रिसोर्सेस फॉलो करना है और उसको स्टेप बाय स्टेप्स करते जाओ। और कहीं भी तुम अटको तो अपने दोस्तों से जो मतलब सेम सेम सर्कल के हैं, और यदि कहीं भी तुम्हें डिमोटिवेशन हो, कहीं कुछ भी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई सी भी जर्नी में ये ऐसा पल हमेशा आता है कि अप एंड डाउन का रहता है, तो कभी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो अपन उनसे जो मेंटर हैं उनसे अपन गाइडेंस ले सकते हैं और उनका सपोर्ट ले सकते हैं जब मतलब गंदे दिनों से बाहर उठने के लिए। और यदि अपन इस चीज को फॉलो करें तो मुझे लगता है कि अपन अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, आप हाँ बताइए नहीं, मतलब क्या हाँ पॉइंट है। काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल था, एंड वट एवर यू मैंशन काफ़ी हेल्पफुल था। ऑब्वियसली सबके साथ होता है, एंड अगर आप मतलब जिस माइंडसेट से आप हो, अगर उसी माइंडसेट के लोग आपके अराउंड होते हैं, जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके दोस्त भी प्रिपरेशन करे, तो हेल्प हो जाती है काफ़ी सारी, मतलब यार वेरी नाइस। ओके, एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू स्पेसिफाई? स्पेसिफाई तो मैं थोड़ा रिसोर्सेज में बता देता हूँ कि मैं मतलब कैसे क्या था। जैसे कि डीएसए के लिए स्टार्टिंग यदि बेसिक आइडिया तुम्हें लेना है तो बेसिक आइडिया से चालू करना है तो पेप कोडिंग बेस्ट यूट्यूब चैनल है।
ओके, फिर उसके बाद यदि तुम्हें थोड़ा एडवांस लेवल में जाना है तो टेक यू फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल जो स्ट्राइवर चलाते हैं, तो वो बहुत बेस्ट है, मतलब कोडिंग के लिए ये हो गया। तो सिस्टम डिजाइन के लिए मैंने वही बोला कि जो 2-3 यूट्यूब चैनल हो गए, जैसे गौरव सेन, ओके, फिर सूडो कोड हो गया, सूडो कोड हो गए, और सौम्यजीत भट्टाचार्य हो गए, मतलब ये अपने हो गए किसके लिए, नाम क्या है, मतलब सिस्टम डिजाइन के लिए, सिस्टम डिजाइन के लिए। ओके, फिर इसके बाद अपनी कोडिंग प्रैक्टिस के लिए गिग्स फॉर गिग्स या लीड कोड, दोनों में से यदि तुम्हें एक भी कोई चूज कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक चीज में प्रोफाइल होके उसमें प्रोफाइल में अच्छे मतलब 200-300 क्वेश्चन करो ना, तो यदि विफल के लिए बहुत आसान पड़ जाता है कि सामने वाला आसानी से विफल देता है कि हाँ इसकी इसने प्रॉब्लम सोल्व कर रखे हैं। तो ये दो चीजें कोडिंग प्लेटफॉर्म। और फिर इसके बाद लास्ट में रिवीजन के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम अपने को सिलेक्ट करना रहता है कि मतलब कि अपन इंटरव्यू से पहले कौन कौन से क्वेश्चन देख के जाए, तो उसके लिए एक सीट है, स्ट्राइवर की सीट है, एसडी सीट, वो ज्यादा फ्रूटफुल है, मतलब कि यदि कोई भी इंटरव्यू है तो उससे पहले एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए स्ट्राइवर की सीट। तो ये है। और फिर इसके बाद रिफरल के लिए यदि अपॉर्चुनिटी अपने को जाननी है तो Naukri.com, लिंक्डइन, कटसोर्ट, इंस्टा हायर, ये अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए। और यदि आपको अपने आप को जज करना है कि अपन कहाँ पे खड़े हैं अपना इंटरव्यू, मतलब कि इंटरव्यू में एक्सपीरियंस चाहिए, तो ट्रैम्प एंड इंटरव्यू बीट, और इंटरव्यू, एक और कोई सा इंटरव्यू, मतलब ये दोनों, मतलब ये फ्री रिसोर्सेस है, मतलब प्रैक्टिस करना, पीआर प्रोग्रामिंग और ये पीआर इंटरव्यू बोल सकते हैं अपन। तो ये रिसोर्स है, मतलब शुरू से लेके अंतिम तक बता दिया कि मतलब कैसे कैसे चलना है। हाँ, नहीं आपने सारा एक एब्स्ट्रैक्ट दे दिया, तो या दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। एंड इवन इफ गाइज अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो या आपको कोई क्वेरी हो जो आप अतुल से पूछना चाहते हो, तो आई हैव प्रोवाइडेड हिज लिंक्डइन प्रोफाइल इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से आप रीच आउट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, एंड कोई भी क्वेरी हो तो ईजिली पूछ सकते हो। एंड अतुल, अदर देन दिस, लाइक अगर कोई भी कमेंट करे कोई क्वेरी, तो प्लीज़ आप उसको रिप्लाई कर देना हमारे चैनल पे। सो डेफिनेटली yeah, that's आई it from my side. Again, it was great to have you here. It was a great discussion with you. Even I got to learn so many things. Thank you so much for accepting my विल। invitation. Thank you.